So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and very warm welcome to my YouTube channel History with me. 6 सेमेस्टर वाले सोच रहे थे उनको मैं भूल गया हूँ, बट नहीं, उनको नहीं भूला हूँ. सो आ गए हम 6 सेमेस्टर की एक वीडियो लेके जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च में आपको क्या करके जाना है थ्योरी में, देन आपको क्या करके जाना है न्यूमेरिकल में. ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसमें हम सोचते हैं कि हमें पढ़ के क्या जाना है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है. But I did some research for you, and after that research, I can say that these are the questions that you need to prepare when it comes to theory, and these are the questions that you need to prepare when it comes to numerical. So, without any delay, let's start the lecture. And please hit the bell icon, please subscribe, and share it with your close friend. I'm not saying share it with every friend of yours, but you can definitely share it with your close friend. And yeah, please support me in the form of, keep commenting, keep engaging with the shorts, keep engaging with the videos. That is something which motivates me, and this is your last semester, guys. So don't do this कि इसके बाद आप जा रहे हो तो भाई unsubscribe करके जाओ. Stay connected with the channel, stay connected with me, follow me on Instagram, ping me there, talk to me, in future also whenever you require, whenever it requires. जब भी कुछ आपको doubt हो, कभी कुछ issue, I'm always there. And shorts मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो shorts को भी आप उतना ही प्यार दो, उतना ही support दो जितना आप वीडियोस को देते हुए आ रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर. देयर आर पीपल, मेरे को नॉस्टैल्जिया हो रहा है जो स्टार्टिंग से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई एम रियली thankful to those people as well. So without any delay, let's start. Let's write the heading first. So we are talking about operation research. This is specifically for sixth semester. तो ऑपरेशन रिसर्च की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे जो थ्योरी क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं उनकी. सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द थ्योरी पार्ट. जस्ट राइट इट डाउन विद मी. कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए. जब मैं बता रहा हूँ लास्ट सेमेस्टर है, मार्क्स मिलेंगे आपको, परसेंटेज बना लो जितने बना सकते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ लो. लास्ट सेमेस्टर है, फिर आगे चल के क्या करना है, आई डोंट नो, एमबीए करना है आपको, जॉब करनी है. सो जल्दी से करते हैं स्टार्ट. थ्योरी में आपको क्या करके जाना है? सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको करके जाना है कि भाई व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च. मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो राइटिंग में भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, बट आई एम गोना रिपीट इट ओरली आल्सो, सो जस्ट राइट इट डाउन whatever suits you. What is operation research? Not sirf research, operation research. What is operation research? So this is your first question. This can be asked in long, this can be asked in short, but what is operation research is very important. You also have to talk about its nature. So discuss the nature, characteristics, and application of operation research. So you don't have to talk about not just the nature, but also the characteristic part. And even the characteristics part, what are the characteristics of operation research? This can even a lot of time it has been asked in the short type question or very short type question as well. So what is operation research? Discuss the nature, characteristic, and application of operation research. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 पे शॉर्ट नोट्स आपको क्या क्या तैयार करके जाने हैं वो बता रहा हूँ. तो शॉर्ट नोट्स में काफी कुछ तैयार करके जाना है और सब कुछ कवर कर देगा आपके. नॉट जस्ट शॉर्ट नोट्स आपको पूछे गए हैं जो फर्स्ट के कुछ 5 क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट वाले होते हैं, ना सिर्फ उसमें बल्कि लॉन्ग में भी शॉर्ट नोट्स 4-5 पूछ देंगे एक साथ कलेक्टिवली. या जो मीडियम वाले होते हैं आपके क्वेश्चंस, जो बॉटम में होते हैं जो क्वेश्चंस लॉन्ग से थोड़ा नीचे, उसमें भी पूछे जा सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स. तो कौन कौन से शॉर्ट नोट्स है सारे मैंने यहां पर कवर किए हैं. डिसीजन ट्री अप्रोच, देन EMV, देन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, देन सिंप्लेक्स मेथड. कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है सिंपली कि व्हाट इज अ सिंप्लेक्स मेथड. देन CPM क्या होता है, EOI क्या होता है, PERT क्या होता है, PERT, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग,
what is big M method, and last is job sequence analysis. तो इन सबके शॉर्ट नोट्स आपको पता होने चाहिए. डिसीजन ट्री अप्रोच, EMV, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, CPM, EOI, PERT, लीनियर प्रोग्रामिंग, बिग एम मेथड एंड जॉब सीक्वेंस एनालिसिस. ठीक है, दैट इज इट. आई डोंट थिंक सो इसके अलावा आपका थ्योरी में कुछ पूछा जाएगा. अगेन आई एम सेइंग ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, शॉर्ट आपका एक होता है ना, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तो तीनों में पूछे जा सकते हैं. कहने का मतलब मेरा ये है. ठीक है, बढ़िया. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा जा सकता है. तो न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं काफी देखे मैंने. तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करके जाने. फाइंड द ऑप्टिमल solution, take help from previous year question paper, see the trend and try to solve these questions only. Try to solve previous year question paper only. Try to solve the numericals of previous year question paper only. That is what I try to mean कि भाई सिर्फ न्यूमेरिकल तैयार कर लो previous year question paper का, सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स पढ़ो जो PYQs में आए. That's it, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें. So find the optimal solution for the following असाइनमेंट प्रॉब्लम. ऐसे पूछ दिया जाएगा कि ये इस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए फाइंड करो ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो दैट्स योर फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं. या आपसे सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा दूसरा क्वेश्चन जो काफी पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. LPP से मैं लिख रहा हूं इसको. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय, स्पेसिफिकली आपसे बोल देगा बाय ग्राफिक मेथड, कि ग्राफिक मेथड से फाइंड करो या सिंप्लेक्स मेथड से फाइंड करो. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. कई बार पूछ दिया जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो. देन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा मैक्सिमाइज करो z इज इक्वल टू 28x1 प्लस 30x2 को सब्जेक्ट टू, और सब्जेक्ट टू में कुछ कंडीशंस आपको दे दी जाएंगी जैसे 6x1 plus 3x2 is less than equal to 18. Similarly, 3x1 plus x2 is less than equal to 8. 4x1 plus 5x2 is less than equal to 30. x1, x2 less than equal to 0. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं. चौथा जो क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है वो है गिवन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ड्रॉ करो नेटवर्क डायग्राम. तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आपको दे दी जाएंगी और आपको फिर नेटवर्क डायग्राम कहीं ना कहीं ड्रॉ करना है, या आपको डिटरमाइन करना है क्रिटिकल पाथ. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल. तो ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल पार्ट. लेट मी गिव यू सम प्रिपरेशन टिप्स. सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं प्रिपरेशन टिप दूं तो इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करो जहां पर आपको सॉल्व करनी हो एक पर्टिकुलर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड. तो दो से ही तैयार करो कि किस तरीके से हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, और दूसरा हाउ कैन वी सॉल्व इट यूजिंग ग्राफिकल मेथड. ये दो चीजें आपको तैयार करनी है. तीसरा, LPP, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं. क्या बोला मैंने? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, राइट इट डाउन. LPP, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करके जाने हैं. आई वुड सजेस्ट यू प्लीज इग्नोर एवरीथिंग बट डोंट इग्नोर द PYQs में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं जस्ट सॉल्व देम. It would be really great for you and it would be really helpful for you as well. So yeah, that is it for this particular video, Operation Research. So see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.